واو مزہ آ گیا، بہت ٹیسٹ ہے آپ کے ہاتھوں میں، نہیں جادو ہے ساحر سائیں۔ پاستا فنش کر کے حانم نے ساحر کی تعریف کی تھی، جسے ساحر نے سر خم کر کے وصول کیا۔ تو تم مانتی ہو نا کہ تم خوش نصیب ہو؟ مطلب؟ حانم نے ناسمجھی سے ساحر کی طرف دیکھا۔ اس دن تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ ساحر سائیں آپ کی بیوی بہت خوش نصیب ہوگی جب مجھ سے پاستا بنوایا تھا۔ حانم کو کھانسی آئی۔ ساحر نے پانی اس کی طرف بڑھایا۔ تم ٹھیک ہو نور؟ آہو جی آہو میں ٹھیک ہوں۔ ہاں تو اس دن مجھے نہیں پتا تھا نا کہ وہ خوش نصیب عظیم ہستی میں ہی ہوں گی۔ کھانسی میں اٹک کر وہ بولتی ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا نور، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ساحر نے اپنی چیئر حانم کے قریب کھینچی۔ جی نور، مجھے مورے کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ اب وہ مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی۔ تاخیر کس لیے؟ حانم شاید واقعی بھول گئی تھی یا انجان بن رہی تھی۔ ہمارے فنکشن کے لیے؟ اوہ اچھا، ٹھیک ہے ساحر سائیں، پھر ہم چلیں گے، میں اپنی لیو اپروو کروا لوں۔ حانم مورے چاہتی ہیں کہ اسی فنکشن میں رخصتی بھی ہو جائے، اور مومانی سائیں بھی، کیونکہ فنکشن کے بعد ویسے ہی ہم دونوں نے پیرس واپس آ جانا ہے، تو وہ دونوں چاہتی ہیں کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے بغیر رخصتی۔ ساحر خاموش ہوا، حانم بھی خاموش تھی۔ نور، تمہارے خواب مجھے بہت عزیز ہیں، تم فکر مت کرو، اگر تم نہیں چاہو گی تو میں مورے سے بھی بات، مجھے منظور ہے ساحر سائیں، مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے، اور ویسے بھی آپ ہی کہتے ہیں نا کہ محبت میں پہلی شرط اعتبار اور یقین ہے، مجھے بھی آپ پر آپ ہی کی طرح یقین کرنا ہے، بنا کسی اگر یا مگر کے۔ آج نور ساحر نے بھی اپنے لفظوں سے ساحر سائیں کو معتبر کیا تھا۔ خود کو کمپوز کرنے کے بعد اینی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں زارون اسے خشمی نظروں سے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی این؟ جب اتنا ہی ڈر لگتا ہے ہارر موویز دیکھنے سے تو پھر الٹے کام کرتی ہی کیوں ہو؟ اپنے کمرے کا ٹی وی خراب ہو گیا تھا جو گیسٹ روم میں آ گئی ہو؟ نہیں، آپ کو کچرا بالکل پسند نہیں ہے نا، اور وہاں پر کھلارا ڈلتا نا، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اینی نے ایسے بتایا جیسے کوئی مورکا مارا ہو۔ یو آر امپاسبل این، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، زارون نے تعصب سے کہا تو اینی کی گول مٹول نیلی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں اور ہونٹ باہر کو لٹک گئے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں زی، ایک تو میں اتنا ڈری ہوئی ہوں اور اوپر سے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اینی کے رونے پر زی تھوڑا نرم ہوا، جو اسے کب سے ڈانٹ رہا تھا۔ ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نا خان سر کو بتاؤں گی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ خان کو کیوں؟ زارون نے اس وقت کو کوسا جب ساحر نے نور العین کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ زی اگر اسے تنگ کرے تو وہ اپنے بھائی کو بتائے۔ میں تو بتاؤں گی، جا رہی ہوں میں، مت بلائیے گا مجھے اب۔ اینی سوسوں کرتی گیسٹ روم سے باہر نکل گئی۔ یہ کمرہ کون صاف کرے گا؟ این یار، زارون تعصب سے صوفے اور ٹیبل پر بکھرے سامان کو دیکھتا اسے سمیٹنے لگا۔ شادی کر کے پھنس گیا یار، اچھا خاصا کنوارا تھا۔ حانم ابھی فریش ہو کر لیٹنے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ آئی ایم سوری نور، میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز ناراض مت ہو۔ تمہارا زاوی، اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ حانم کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اس کے میسج سین کر کے اگنور کرتی بستر پر دراز ہو گئی، کیونکہ اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ یہ بات سوچ کر اپنا موڈ اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی کہ زاویار کا میسج آیا ہے۔ یار اینی، اداس کیوں ہو رہی ہو؟ یار ایک ہفتے کی تو بات ہے، ویسے بھی تم لوگوں نے بھی تو پاکستان آ جانا ہے نا ایک آدھ دن تک، آفٹر آل تمہاری بیسٹی کی شادی ہے۔ حانم نے اینی کو گلے لگایا۔ نور، میں تمہیں بہت مس کروں گی، میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے لیے بہت خاص ہیں، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ اوہ، اب رلاؤ گی کیا پگلی؟ حانم نے اینی کے گال کھینچے۔ مس نور، زاوی سر آپ کو بلو فائل کے ساتھ اپنے آفس بلا رہے ہیں۔ اتنے میں حانم کا کلیگ اسے آ کر بتا کر گیا تھا۔ بے ساختہ ہی حانم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ اپنے ڈیسک سے بلو فائل پکڑ کر حانم نے گہرا سانس لیا اور زاوی کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ نور حانم کی آواز پر اپنی چیئر پر ریلیکس سا بیٹھا زاویار سیدھا ہوا تھا۔ یس مس نور، کم اینڈ سٹ۔ حانم اس کے سامنے والی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور زاویار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، یہ لیں سر بلو فائل، میں نے یہ کمپلیٹ کر دیا، اینڈ جو ڈی جی انڈسٹری کے پیپرز تھے، وہ جو پرنٹ کروانے کے لیے ڈاکیومنٹس دیے تھے، وہ میں نے خان سر کے آفس میں رکھ دیے۔ آگے اجازت ہو تو میں جاؤں؟ انتہائی پروفیشنل انداز میں اسے بریف کر کے حانم نے اجازت مانگی۔ وہیں دوسری طرف زاویار بے چین ہوا۔ پلیز نور میری بات سنو۔ زاویار نے اپنے ٹیبل پر پڑی فائل سائڈ پر کر کے حانم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔
जब हानम ने गुस्से से उसका हाथ झटका। बी इन योर लिमिट्स मिस्टर ज़ावियार, आई एम सॉरी। आखिर किस किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे आप मिस्टर ज़ावियार? हानम ने आंखें बड़ी करके पूछा। हानम, मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ज़ावियार ने सुलझाऊ अंदाज में कहा। मगर मुझे तो आपके लबो लहजे से कहीं भी शर्मिंदगी झलकती महसूस नहीं हो रही। खैर, बाय द वे, आपको ये बताना था कि मैं कल जा रही हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान वापस? मगर क्यों नूर? ज़ावियार के लहजे में परेशानी और बेचैनी दोनों ही थे। मेरी फैमिली है उधर, मेरी ममा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो आई डोंट केयर, क्योंकि खान सर मुझे लीव दे चुके हैं। हानम ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नूर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ज़ावियार की थकी हुई बेबस सी आवाज़ आई। एक पल को हानम ने भी अपनी सुर्खोती भूरी आंखें उठाकर उसे देखा, जो ज्यादा देर हानम की आंखों में नहीं देख सका। मैं क्या कर रही हूँ मिस्टर ज़ावियार? मैं क्या कर रही हूँ मिस्टर ज़ावियार? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? तो मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करती हो और ना ही मेरे प्रपोजल का वाज़ेह जवाब दे रही हो, और अब पाकिस्तान जा रही हो। मैं कैसे रहूँगा नूर? मेरे लिए तो तुम्हारे बगैर गुजारे पिछले 2 हफ्ते सुहाने रूह थे, अब तुम फिर जाने की बात कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ? दूसरा, मैं हर अननोन नंबर के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। और तीसरी बात, जब सबसे अहम बात प्रपोजल की, तो आपने मुझे दे दिया, मगर कहाँ है आपकी फैमिली? कहाँ है आपके पेरेंट्स? उनको बाकायदा रस्म के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आना चाहिए ना। बताइए मिस्टर ज़ावियार, कहाँ है वो सब? मेरे प्रपोजल का मेरे घर वालों से क्या ताल्लुक? ज़ावियार ने हैरानगी से पूछा। वाओ मिस्टर ज़ावियार, वाओ, मैं एक इज्जतदार घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ ऐसे लड़के का खुलेआम लड़की को प्रपोज करना बेगैरती समझा जाता है, वहाँ ऐसे रिश्ते नहीं होते, और आप बात करते हैं प्रपोजल की। हानम ने तंजिया ताली बजाई। आज के बाद अपने घर वालों से बात किए बगैर मुझसे पाने सो कॉल्ड प्रपोजल के जवाब लेने के लिए पूछिएगा भी मत। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इज्जतदार घर से ताल्लुक़ नहीं रखता? ज़ावियार ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर कहा। आई डोंट नो, मैंने आपको कभी इतना जानने की कोशिश नहीं की। पुरसकून से अंदाज में उसे जवाब देती वो उसके कैबिन से निकल गई। मैं घर क्या कहूँगा? ज़ावियार मुसलसल इसी बात को सोच रहा था। क्या घर वाले उसका फ़ोन भी उठाएंगे? ज़ावियार ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना बेबस भी होगा कभी। ये सब मेरी उस सो कॉल्ड कज़न की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए हैं। क्या था अगर मैंने अपनी पसंद की हमसफ़र की ख्वाहिश कर ली थी, उसे ही मेरे मत्थे मारने की पड़ी थी उन्हें। ज़ावियार को अपनी उस गायबाना कज़न से शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। उफ़ नूरे हाकिम, तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूँगा। तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ ज़िद भी हो। अब तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें सबसे जुदा और मुनफरिद बनाता है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। भाभी साईं क्या कह रही थी हानम? क्या उसे कोई एतराज़? आनसा बेगम ने हाला से हानम के जवाब के बारे में पूछा। आनसा बेगम ने हाला से हानम के जवाब के बारे में इस्तफसार किया। जी अदी साईं, मेरी हुई थी हानम से बात, उसे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो लोग तो कल ही आ रहे हैं वापस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है हाला, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह साईं हमारे बच्चों को भी सदा खुश रखे। ऑफिस में एक मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद हानम घर आई। अब उसका रुख साहिर के फ्लैट की तरफ था, जो आज अपनी मसरूफियत की वजह से ऑफिस नहीं आया था। साहिर की नई मसरूफियत उसकी इंडस्ट्री की एक और ब्रांच खोलना थी। ये ख्वाहिश तो साहिर की पहले से थी, मगर पैसे और वक्त की किल्लत की वजह से वो उस पर काम नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि उसके पास वक्त भी था और पैसा भी, इसलिए वो फ्रांस के दूसरे शहर में भी अपनी इंडस्ट्री को ब्रांच खोलना चाह रहा था, जिस पर काम जोरों से शुरू हो चुका था। खानसाई, हानम रुखसती के लिए मान गई है। आनसा बेगम ने मुस्कुराते हुए हम्माद खान को बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप लोग तैयारियां शुरू करें और जिन्हें जिन्हें बुलाना है उनकी लिस्ट तैयार करें, फिर हम हवेली चलेंगे इनविटेशन देने। हम्माद खान ने कहा तो आनसा बेगम की मुस्कुराहट थमी। नहीं खानसाई, मैं उस हवेली में नहीं जाऊंगी और ना ही उन लोगों को अपने बच्चों की शादी पर बुलाऊंगी। उन्होंने हमेशा मेरे खान को हकारत आमेज़ लहजे में ही मुखातिब किया। मगर आंसा, वो सिर्फ हमारे बेटे के रिश्तेदार नहीं हैं, हमारी बहू के भी कुछ लगते हैं। हम ना सही, मगर हानम का तो उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। आगा साईं, उसके दादा लगते हैं। उसको
और उसके दोनों ताया और ताई साईं उसकी कज़नें। क्या हानम को दुख नहीं होगा जब उनमें से कोई भी नहीं होगा उसकी शादी पर वहाँ? आप भूल गए हैं खान साईं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे दुख देने के साथ साथ हानम को भी दुख दिया, उस पर भी बहतान लगाया। मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मुझ जैसी डरपोक नहीं थी। उसने साबित किया कि वो नूरे हानिम है। अपने ऊपर गलत इल्ज़ाम पर उठी उंगली को वो तोड़ भी सकती है और उखाड़ भी। और जहाँ रह गई उन लोगों को बुलाने की बात, तो अगर हानम चाहेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हानम की खुशी मुझे खुद से भी अजीज़ है। हानम प्लेट में बिरयानी डालकर साहिर के लिए ले गई। उसे पूरा यकीन था कि साहिर ने कुछ नहीं खाया होगा अब तक। साहिर के फ्लैट का दरवाज़ा अनलॉक करके हानम अंदर आई और सीधा साहिर के कमरे की तरफ बढ़ी। तवक्को के आन मुताबिक साहिर अपनी सुरमई आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए अपने लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग करने में मशगूल था। हानम ने गला खंकारा मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। हानम ने एक दफ़ा फिर ज़ोर से गला खंकारा तो साहिर ने बिना उसकी तरफ देखे अपने अपने दाएं हाथ के पास पड़े टेबल पर पानी का ग्लास पकड़ा और हानम की सिमत बढ़ाया। हानम ने दांत कचकचाए, फिर होंठों पर शरारती मुस्कुराहट लाए वो बिल्कुल साहिर के सामने बैठ गई। साहिर साईं, नर्म मीठा लहजा। साहिर के कान खड़े हुए मगर नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर ही थी। साहिर साईं। साहिर ने नामहसूस अंदाज में आंखें तिरछी की। हानम अपनी आंखें पटपटाए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने पर तुली थी। हानम ने गहरा सांस लिया। इस बार उसने लैपटॉप बंद करने की बजाय साहिर की आंखों से चश्मा ही उतार लिया। नूरे साहिर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मुझे ग्लासेस दे दो। इम्पॉर्टेंट काम बाद में कीजिएगा, ये गर्मा गर्म बिरयानी खाएं, मैंने खुद अपने हाथों से प्लेट में डाली है। हानम ने फर्जी कॉलर झाड़ कर कहा, यार भूख नहीं है। पर मुझे तो थी, मगर आपने नहीं खानी तो ठीक है, मैं उठा लेती हूँ। सामने हानम और अगला बंदा बात न माने। तुमने डिनर नहीं किया नूरे साहिर? उसने संजीदगी से पूछा। मैंने हम दोनों के लिए बिरयानी बनाई, आपको पता तो है मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। अच्छा बैठो, मैं ज़रा फ्रेश होकर आया। 5 मिनट बाद साहिर फ्रेश होकर आया, फिर दोनों का खाना शुरू हुआ। वाह, बिरयानी टेस्टी थी, मगर जो स्पाइसी बिरयानी आंसा पुप्पो साईं बनाती है ना, उसका कोई जवाब नहीं। मोरे के हाथ की बिरयानी तो मैं खुद मिस कर रहा हूँ। साहिर ने पानी का ग्लास पकड़ कर कहा। अच्छा नूर, अब दो मुझे ग्लासेस, मैं अभी काम पूरा कर लूँ अपना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये ग्लासेस आपके सुरमई आंखों में। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये ग्लासेस आपकी आंखों पर, आपकी आंखें चुभ जाती हैं। हानम ने मुंह बनाया। अच्छा ना, अभी के लिए तो दे दो। फ्रेमलेस ग्लासेस उसकी सुरमई आंखों पर बहुत जच रही थी, मगर हानम को तो सिर्फ सुरमई आंखें ही पसंद थी। ये ले। हानम ने मुंह बिसोर कर उसे ग्लासेस थमाई, फिर उठकर प्लेट्स किचन में रखकर वापस उसके कमरे में आई। वैसे साहिर साईं, आप कितने कंजूस हैं, इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, आपने एक दफ़ा भी मुझे पेरिस की खूबसूरत जगहों पर घुमाने के लिए नहीं कहा और ना ही लेकर गए। हानम ने शिकवा किया, मगर साहिर अभी भी अपने काम में मसरूफ़ था। हानम ने एक शिकवा कुना नज़र साहिर पर डाली और वहाँ से उठ गई। उसके जाने के बाद साहिर ने एक बंद दरवाजे की तरफ देखा और अपनी ग्लासेस उतारकर गहरी सांस हवा के सपूत की, फिर अपना फ़ोन उठाकर मतलूबा जगह पर मिलाया। हेलो, जो मैंने कहा था वो सब तैयार है, मैं नूर को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। आप कहाँ से वापस आ रहे हैं इतनी रात को? घर में दाखिल होते साथ ही ज़ारून एनी के हत्थे चढ़ा था। तुम सोई नहीं अभी तक? सोफे पर बैठकर अपने शूज़ उतारता रिलैक्स से अंदाज में वो बोला। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। एनी ने इस कोई बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्योंकि उसे बुरा लगा था। हाँ, मैं ज़रूरी काम से गया था। अंदाज अभी भी लापरवाह था। बस एक लम्हा लगा था एनी को अपनी नीली आंखों में आंसू लाने में और सोफे पर रिलैक्स से बैठे ज़ारून को एकदम सीधा होने में। ज़ारून का मूड एनी को थोड़ा तंग करने का था। परसों रात कमरे की खुद सफाई करने के बावजूद भी वो उसे मना रहा था, मगर मैडम के नखरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उसने सोचा थोड़ा एटीट्यूड वो भी दिखा दे, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि एनी ने पहले ही मौके पर अपना हथियार यानी आंसू निकाल लिए थे। यार रो क्यों रही हो एन? जी फौरन उसके पास आया। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। पता है मैंने आपके लिए अपने हाथों से डिनर बनाया। पता है मैंने अपने हाथों से आपके लिए डिनर बनाया। एक तो आप लेट हो गए, ऊपर से मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। सूं सूं करती एनी दुख से बोली।
मेरी ऐन ने मेरे लिए डिनर बनाया, तो चलो करते हैं हम फिर साथ में डिनर। ज़ारून ने उसके शाने पर बाजू रखा, जिसे झटकते हुए एनी ने इनकार किया। नहीं करना डिनर, पहले मुझे ये बताएं कहाँ थे आप, किसके साथ थे, और ये लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू। जी मुझे सच सच बताएं कहाँ से आ रहे हैं आप। एनी ने तो उसका कॉलर ही पकड़ लिया। तो मुझ पर शक कर रही हो एन? ज़ारून हैरान हुआ। तो फिर बता क्यों नहीं रहे आप मुझे? एनी की आवाज़ रुन गई। उफ, मैं साहिर के साथ था यार। झूठ। खान सर क्या लेडीज़ परफ्यूम यूज़ करते हैं? एनी ने माथे पर बल डालकर उसे घूरा। उफ लड़की, उसने नूर के लिए सरप्राइज़ अरेंज किया है। वो उसके लिए गिफ्ट ले रहा था, तब मेरे हाथ से परफ्यूम की बॉटल गिरकर टूट गई, तो ये उसकी स्मेल है। पक्का ना? एनी ने आंखें चोटी की। वाह, खान सर नूर के लिए सरप्राइज़ अरेंज कर रहे हैं। हाउ रोमांटिक। एक आप हैं, कभी आपने किया मेरे लिए सरप्राइज़ अरेंज? एनी ने मुंह बिसोरा। अच्छा, अभी उस दिन तुम्हें लंच पर नहीं लेकर गया था मैं? ओह, वो लंच तो सर खान की तरफ से था। एनी ने मुंह बनाया। अच्छा, और ये रिंग? ज़ारून ने एन के बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर पहनी रिंग पर अंगूठा फेरा। हाँ तो बीवी हूँ मैं आपकी, एनी ने इठला कर कहा। हाँ मगर ये शक, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है एन? ज़ारून ने खफा लहजे में संजीदगी से पूछा। तो एनी उसके चेहरे पर वाज़ेह खफगी महसूस कर गई। वो मतलब तुम्हें वाकई मुझ पर यकीन नहीं है नूरुल ऐन? ज़ारून दुखी लहजे में कहता वहाँ से जाने लगा, जब एनी ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। जी मुझे यकीन है आप पर, मगर मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है कि कोई आपको मुझसे छीन ना ले। ये सोच कर ही खौफ आता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नीली आंखें यकदम गीली हुई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह है? क्या कभी भी तुम्हें मेरी मोहब्बत में खोट लगा? एन मुझे बताओ, क्या इतना टाइम मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया, अपने लिए भरोसा कायम नहीं कर सका? ज़ारून का लहजा दुख से भर गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन ना होता तो कभी आपके साथ मैं ज़िंदगी शुरू ही ना करती। मेरा उस वक्त आपकी बीवी के रूप में होना, मेरा इस वक्त आपकी बीवी के रूप में यहाँ होना इस बात का सबूत है कि मुझे आप पर यकीन है। बस मैं डर गई थी। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। एन ने अपने कान पकड़े। अच्छा अब ये क्यूट फेस ना बनाओ, मैं नहीं आने वाला तुम्हारी बातों में। जी ने उसके हाथ कानों से हटाए थे। जी मेरे प्यारे जी। नहीं, एन के जी। एनी ने आंखें पटपटाई, ना चाहते हुए भी ज़ारून के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। नूर, नूर, नूर। साहिर ने नूर को हिलाया। नूर उठो। हानम एकदम से उठ बैठी। साहिर साईं, आप इस वक्त यहाँ? फ्लाइट का टाइम हो गया है क्या? नहीं चलो मेरे साथ। साहिर ने उसे हाथ से पकड़ कर उठाया। कहाँ? हानम ने हाथ से जमाई रोकते हुए कहा। चलो तो फिर बताता हूँ। साहिर साईं, रात के 3 बज रहे हैं, आपको पता भी है सुबह हमारी फ़्लाइट है। इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आप? हानम ने बंद होती आंखों से कहा, तो साहिर उसे ऐसे ही थाम कर बाहर की तरफ बढ़ा। गाड़ी में भी हानम सीट के साथ टेक लगाए सोती रही। मतलूबा जगह पर पहुंचकर साहिर ने हानम को हाथ से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। साहिर साईं गाड़ी के बोनट से टेक लगाए। साहिर साईं के गाड़ी के बोनट से टेक लगाए। वो ऊँघती हुई साहिर को मुखातिब कर रही थी। नूरे साहिर, ओपन योर आइज। साहिर ने सरगोशी की। हनम ने अपनी नीम व आंखें खोली तो अपने ज़माने का मंजर देखकर मबहूत रह गई। वही आईफल टावर की जगमगाती रोशनियों से नहाया पेरिस। रात के उस वक्त इक्का दुक्का ही लोग थे। जहाँ पर हानम और साहिर खड़े थे वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब एक ख्वाब का सा मंजर था। हानम को बेसाख्ता अपने पेरिस में पहली रात याद आई। तब उसने अपने फ्लैट के टेरेस से ये मंजर देखा था। तब वो अकेली थी, उदास थी, मगर आज उसके साथ उसका हम सफ़र था। आज उदासियाँ कहीं दूर जा सोई थी। एकदम नूरे साहिर की खिलखिलाहट हवा में हरसू जल तरंग बजा गई। मबहूत सा खड़ा होकर साहिर इस मंजर को पूरे हक से अपने मोबाइल में कैद करने लगा। नूर, साहिर ने एक दफ़ा फिर सरगोशियाना अंदाज में उसे पुकारा, जो उस वक्त स्याह ढीले ट्राउज़र के साथ स्याह लॉन्ग कुर्ता और ऊपर स्याह शॉल, जो कि जल्दी में साहिर ने उसे पहनाई थी, वो उस खूबसूरत स्याह सुरमई रात का हिस्सा लग रही थी। साहिर साईं, ये सब बहुत खूबसूरत है, मानो ख्वाब सा, जैसे अभी मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ हवा में तहलील हो जाएगा। हानम ख्वाबनाक लहजे में बोली, मगर ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है ये, एक खुशकुन हकीकत। हानम ने आंखें बंद करके उस खुशबू में बसी हवाओं को खुद में उंडेला। जब साहिर ने उसका हाथ थामा। चलो। कहाँ? अभी तो ठीक से देखा। हानम कुछ कहती उससे पहले वो उसे उस कोने में ले गया जहाँ अंधेरा था। साहिर साईं, हानम ने दाएं बाएं मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। साहिर साईं, हानम ने फिर आवाज़ लगाई।
सा एकदम लाइट्स ऑन हुई और हानम साकित रह गई। एक खूबसूरत सी टेबल जिसके गिर्द 2 कुर्सियां पड़ी थी, उनके इर्द गिर्द ऑफ वाइट कलर के नेट के पर्दे लगे थे और उन पर सजी फेरी लाइट्स मंजर को और ख्वाबनाक बना रही थी। हैप्पी बर्थडे मिसेस नूर साहिर, वो अभी उसी कोने में खोई हुई थी जिससे जब उसे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी। चलें काट लें केक, साहिर ने हानिम के आगे हाथ हिलाया। हानम ने जानदार मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ पर अपना कोमल हाथ रख दिया। टेबल पर हानम का फेवरेट चॉकलेट लावा केक पड़ा था जिसके ऊपर वाइट क्रीम के साथ हैप्पी बर्थडे मिसेस नूर साहिर लिखा था। साहिर साईं, ये सब बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। पहले केक काट लें। साहिर ने केक पर लगी क्रीम उसके नाक पर लगाई, फिर दोनों ने मिलकर केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिसेस नूर साहिर। हानम ने केक काटकर साहिर को खिलाया और फिर साहिर ने हानम को, चले मेरा गिफ्ट दें। गिफ्ट वो दे तो दिया, ये सब कुछ मैंने ही तो अरेंज किया है। साहिर ने उस सब डेकोरेशन की तरफ देख कर कहा, मगर ये तो सरप्राइज़ है, मेरा गिफ्ट। हानम ने फिर अपना हाथ आगे किया। गिफ्ट? एक मिनट। साहिर ने अपनी शर्ट पैंट पर हाथ मारा। कहाँ गया यार? ये रहा। साहिर ने गुलाब का खूबसूरत सा फूल निकालकर हानम के सामने किया और एक घुटने पर बैठा। बेसाख्ता हानिम का दिल जोर से धड़का। जी। सो मिसेस नूरे साहिर, विल यू बी माइन? एक और गुलाब का फूल निकाला। विल यू बी माइन फॉर एवर? अब 2 फूल। विद द डीप कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। अब एक साथ 4 फूल निकाले। विल यू बी माइन टिल द लास्ट ब्रेथ? हानम का रुआं रुआं उसे हाँ कहने के लिए बेताब था। हानम ने हाथ आगे बढ़ाकर फूल थामे, फिर अपने मखसूस अंदाज में अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा, सोचूंगी। फिर मुस्कुराहट दबाकर साहिर का गाल खींचती वहां से भाग गई। उसकी खिलखिलाहटें हवाओं के साथ साथ साहिर को भी अपना असीर बना रही थी। एकदम एकदम से नूर का पांव अटका। इससे पहले कि वो सामने आती सीढ़ियों से गिरती, साहिर ने उसे थामा। दोनों की ही धड़कनें तेज और सांसें फूली हुई थी। ध्यान से नूर, आप हैं ना ध्यान रखने के लिए? तुमने जवाब नहीं दिया। साहिर ने भागने की वजह से उसके मुंह पर आई लटों को पीछा किया। नूर, अच्छा मेरी कुछ शर्तें हैं। वो दोनों ही सीढ़ियों पर बैठ गए। अच्छा तो क्या है मोहतरमा नूर हानिम साहिबा की शर्तें? शर्त नंबर 1, मैं अपनी स्टडीज़ आगे कंप्लीट करूंगी, मंजूर है। शर्त नंबर 2, मैं जॉब भी कंटिन्यू रखूंगी, ओके। शर्त नंबर 3, मैं जैसा भी खाना बनाऊंगी खाना पड़ेगा, ओके। साहिर ने ओके को खींचते हुए कहा तो हानिम ने घूरा। ओके ओके। शर्त नंबर 3, आप रोज़ मेरे लिए चॉकलेट्स लाएंगे, मोटी हो जाओगी। साहिर ने ज़ुबान पर लाने की गलती नहीं की। ओके। शर्त नंबर 4, जब मैं कहूँगी मुझे पास्ता भी बनाकर खिलाएंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पास्ता बनाकर खिलाऊंगा? ये बात तो हरगिज़ नहीं करेंगे आप। साहिर के कुछ भी कहने या बोलने से पहले ही हानम बोल पड़ी तो साहिर नफ़ी में सर हिलाता ओके कह गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा अभी एक और भी रहती है, फिलहाल आगे का पता नहीं। हानम ने आंखें मटका कर कहा, ज़्यादा नहीं होंगी। तो मैंने अभी जवाब नहीं दिया। हानम ने गर्दन अकड़ाई। आप भूल रहे हैं कि आप मिसेस नूर साहिर हैं। गॉट इट नूर हानिम साहिर खान, आप भी शायद भूल रहे हैं कि अभी रुखसती नहीं हुई। अच्छा बताओ 5वीं शर्त, आपको कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगे या कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो प्लीज़ सबसे पहले वो बात मुझसे पूछिएगा, क्योंकि बदगुमानियों से रिश्ते टूट जाते हैं। नूरे साहिर ने उसका हाथ थामा। अव्वल तो ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, मगर हम इंसान हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं। फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी हानम कि मैं अपने रिश्ते में कोई बदगुमानी ना आने दूं। अगर हमें आपस में कोई मसला हुआ तो उसे सुलझाने की वाहिद जगह हमारा अपना कमरा होगा, और ये मेरा वादा है। अब बताओ कोई और शर्त तो नहीं है, या फिर घर चलें, सुबह फ्लाइट है। साहिर साईं, हानम ने शाने पर सर रखा उसके। पहले जब मैंने कबूल किया था तो मुझसे ज़्यादा तब ममा साईं की ख्वाहिश थी, मगर अब मुझे दिलो जान से कबूल है। मुझे कबूल है आपका साथ भी और आपकी हमसफ़री भी। साहिर ने अपनी पैंट की पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर हानिम को पहना, जिस पर छोटा छोटा नूरे साहिर मिलाकर लिखा हुआ था। अपने दोस्तों के साथ शहर में रात के उस पहर आवारागर्दी करते। जावियार की नज़र दोनों पर पड़ी। नशे से बंद होती अपनी आंखें खोलकर उसने उस लड़की को देखने की कोशिश की जिस पर उसे नूरे हानिम का गुमान हो रहा था। नूर, तुम मेरे हवासों पर बुरी तरह छाई हुई हो कि अब हर जगह तुम ही तुम नज़र आती हो, मगर बहुत जल्द मैं आऊँगा अपने घर वालों को लेकर तुम्हें लेने के लिए।